ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ MCQs ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸੈਟਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦਾ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਦਾ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਬਸੈਟ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਟੂਪਲਸ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੀ ਹੀ ਕਮਾਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਪੀਟਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਮੈਥਮੈਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੀਆਂ ਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੈਟਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਮਾਲ ਲੈਟਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ, ਸਬਸੈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸੈਟਸ, ਟੂਪਲਸ ਵਾਸਤੇ ਟੂਪਲਸ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖਦੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਸੈੱਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ B ਸੈੱਟ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਸਕੁਏਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ A ਕੋਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ 2 ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਕੋਮਾ ਪਾ ਕੇ B ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਫਟ ਇੰਟਰ ਦਬਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 2 ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 5 ਕਾਮਨ ਆ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 7 ਕਾਮਨ ਆ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਕਾਮਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੇਖੋ 2 5 7 8 ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ, ਦੇਖੋ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਆ A ਸੈੱਟ ਆ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸੈੱਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਸੈੱਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ U ਮਾਈਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ B ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, B ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ U ਨਫੀ B, U ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ A ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ A ਨਫੀ B ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬਸੈਟਸ ਵੀ ਮਾਲੂਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਬਸੈਟਸ ਫਾਈਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਟਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਸਬਸੈਟਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੂਪਲਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਬਸੈਟਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ A ਦੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ A ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲਾ A ਆ 2 4 5 7 8 ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਸੈਟਸ ਆ ਗਏ। ਟੂਪਲਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਟੂਪਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ A ਸੈੱਟ ਲਿਖਣਾ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਟੂਪਲ ਚਾਹੀਦੇ। 2 ਵਾਲਾ ਟੂਪਲ ਚਾਹੀਦੇ, 3 ਵਾਲੇ ਟੂਪਲ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ A ਸੈੱਟ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ, A ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਜੀ 1 6 7, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਆ। B ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ B ਬਰਾਬਰ ਹੈ 4 8 ਤੇ 6, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅਸੀਂ UN, ਦੇਖੋ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਸਕੁਏਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਲਿਖਦੇ ਨੇ A ਤੇ B ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖਣਾ। ਅਗਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਬਸੈਟਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, UB, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਉੱਤੇ। A ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਬਸੈਟਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਕੀਤਾ A ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਸਬਸੈਟਸ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਬਸੈਟਸ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਟੂਪਲਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ TU, ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਲਿਖਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟੂਪਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ 2 ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 3 ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪੇਅਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਜੀ 2 ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏंगे 2 ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਊਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ 2 ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ 3 ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ 2 ਪੇਅਰਸ ਆ ਗਏ। ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਥੇ 3 ਲਿਖਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖਿਓ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੰਟਰੋਲ V, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਦੇ 3 ਤੇ 3 ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਟੂਪਲਸ ਆ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ 3x3 ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੂਪਲਸ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ A × A
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ A क्रॉस A ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, इस तरीके असी इन्हों के टूपल्स जोड़े ने वो फाइंड कर सकते हैं तो अपने आसानी के नाल। देखो सिंपल एक लिख अगर ये बनाने हो वैसे बनाने हो तो साढ़े को गलती होने के बहुत सारे चांसेस आ। तो इस करके असी अपनी जिंदगी आसान बनाइए मैथमेटिका तो मैटलैब में सीख के, ताकि साडा मैथ भी आसान हो, साडे उत्ते बोझ भी कम हो, असी चीज़ों को अच्छे तरीके नाल ऑब्जर्व भी कर सकीए। नैक्सट असी अपने लैक्चर वाल मूव करते हैं। नैक्सट की है साढ़े को जी, नैक्सट साढ़े लैक्चर दे विच जिहड़ा वा इन्हां दे टेस्टिंग रिलेशन बिटवीन सैट्स के सैट्स के दरमियान रिलेशन किस तरीके दे नाल। मिसाल के तौर पर असी इंटरसैक्टिंग चैक करना हो कि अगर दो सैट आ वो इंटरसैक्ट होंदे आ कि नहीं होंदे, अगर डिसजॉइंट है कि नहीं है, सबसैट है कि नहीं है। अगर ये रिलेशन चेक करना हो सैट्स के दरमियान, देखो असी की कहते इंटरसैक्शन कैपिटल क्यू लिखी दा, डिसजॉइंट कैपिटल क्यू लिखी दा। अगर कोई दो इंटरसैक्शन होने दरमियान कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन होएगा तो वो ट्रू दे देगा, अगर अदरवाइज वो फॉल दे देगा। हाँ देखो जी, इंटरसैक्टिंग क्यू दे विच की आएगा कि अगर उन्होंने दरमियान कोई एक एलीमेंट दो सैट्स के दरमियान कोई एक एलीमेंट होएगा तो मतलब उन्होंने इंटरसैक्शन हो सकता वा, उन्होंने एम्प्टी सैट नहीं आएगा तो वो ट्रू देगा, अगर वो कोई भी एलीमेंट कॉमन ना हो वो फॉल्स दे दे। इसी तरीके दे नाल फिर यदि प्रैक्टिस भी करते हैं। यह देखो जी, ए लिखा जी बी, डिसजॉइंट वास्ते भी इस तरीके ना लिख, डिसजॉइंट कैपिटल क्यू लाजमी लिखना वा, फिर ही इन्हें ट्रू या फॉल्स देना। इसी तरीके दे नाल असी सब सैट्स चैक करना चाहते हैं कि पहला जिहड़ा उहदे सारे एलीमेंट अगर उहदे विच होण तो वो एक दूजे का सबसैट होएगा, अदर वो सबसैट नहीं होएगा। एक इहदा प्रैक्टिकली कर लेंदे आ, इंटरसैक्शन का कर लेंदे आ, डिसजॉइंट जा इन्हां दा कोई करके साडे को अगे नैक्सट असी मूव इत्थे सबसैट है, इत्थे कोई मिस प्रिंटिंग है, इत्थे की आ जाना साडे को सबसैट वास्ते। असी इहदा प्रैक्टिकली करके देखते हैं। प्रैक्टिस असी इसे मूव किया, ए सैट असी यही चुक लीए ताकि साडा टाइम बच जाए। कंट्रोल सी, ठीक हो गया, कंट्रोल वी ठीक हो गया। ये चेंजिंग कर देंगे 7,9 ठीक हो गया। इनू आप बी का नाम दे देंगे। असी हुण ये चैक करना चाहते हैं कि ये देखो ये इन्हां दे दरमियान कोई ना कोई एलीमेंट जिहड़ा वा अगर इंटरसैक्शन हुंदी कि नहीं। की लिखना जी, आई टी इंटरसेक्शन ठीक हो गया। इंटरसेक्शन नाल कैपिटल क्यू ठीक हो गया, तो स्क्वायर ब्रैकेट ए कोमा बी। देखो इन्होंने दरमियान कोई ना कोई चीज़ कॉमन है, वन भी है, तो मतलब इसका ट्रू आंसर आना चाहिए। ये मिसटेक इंटरसैक्शन देखो साढ़े को की है जी, इंटरसैक्टिंग है जी, कि इतने असी गलत कर दे, इंटरसैक्टिंग एन जी ठीक हो गया। ऐसी इंटरसैक्टिंग इंटरसैक्शन नहीं इंटरसैक्टिंग तो शिफ्ट किया है, देखो ट्रू आ गया आंसर। ठीक है, थोड़ा जहा मिसटेक हुई सर उन्हें फौरन ही होर जवाब दे दिता, इस करके ये पास इंटरसैक्टिंग असी इसी तरीके नाल तुसी सबसैट भी चैक कर सकते हो एक दूसरे सबसैट है कि नहीं। तो ये ज़्यादा तो ज़्यादा प्रैक्टिस करो। नैक्सट असी मूव करते हैं अपने लैक्चर वाल। इसी तरीके नाल तुसी सबसैट डिसजॉइंट सबसैट सारा कुछ असी एक दूजे नाल मूव कर सकते। नैक्सट असी मूव करते अपने नैक्सट की है कंटेनिंग एलीमेंट के कंटेनिंग एलीमेंट किस तरीके नाल पता चलते हैं। और बस असी चंद एक चीज़ असी देखनी है कि कंटेनिंग आल के अगर पहले साइड के सारे एलीमेंट बी दे विच होए, एक एलीमेंट के सारे एलीमेंट बी दे विच होएगा वो ट्रू कहेगा, अदरवाइज वो फॉल्स कहेगा। ठीक है, यानी कि सब सैट वाला ही है वह। इसी तरह कंटेनिंग नन इसका मतलब है कि अगर ट्रू कब कहेगा कि पहले दे अगर कोई भी एलीमेंट बी दे विच नहीं है तो उसका मतलब कंटेनिंग नन आ जाएगा। इसी तरीके ना कंटेनिंग यानी कोई एक एलीमेंट भी होएगा, देखो नाम तो ही सारी चीज़ा वाजिया हो रही है, उधर तो ही उन्होंने क्रिएट की हुई है सारी चीज़ा। फिर एक अदे की प्रैक्टिस करांगे, फिर नैक्सट मूव करांगे। देखो कंटेनिंग एग्जैक्टली ठीक है, एग्जैक्टली सारे जो एलीमेंट कोई कंटेन करता होया तो वो ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज वो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल इसी करके देखते हैं। कंटेनिंग आल असी आए अपने इधर वाल। ठीक है, साडे को यही आप ए बी यही इस्तेमाल कर लेंगे हैं। कंट्रोल सी ठीक
ठीक है, कंट्रोल V तो साढ़े को की है जी CONT साढ़े को की साढ़े की है जी कंटेन्स, ठीक है, CONTAIN कंटेनिंग्स आल वाला सी देख लिए, देखो सारे के सारे एलिमेंट है कि नहीं है, नहीं है, मतलब साढ़े को फॉल्स आ जाएगा। ठीक हो गया। अगर इसी तरीके ना होंदा इत्थे फॉर एग्जांपल इत्थे मैं होर चीज़ भी ऐड कर दिंदा वा नाल ही, ताकि साढ़ा टाइम ज़रा ज़्यादा ना लगे, वीडियो साड़ी लंबी ना होवे, ठीक है, इनू ही करना जाए। हुण की हो जाना सारे सारे कंटेन कर दे साढ़े को, दोबारा लिख दे वही उन्हीं रिलेशन उन्होंने ही वो करी आ रहा जी। इस तरह करके वो सारा ट्रू या फॉल्स, यानी कि अगर कंटेन करता है वो ट्रू देगा, अदरवाइज वो की कर देगा, वो फॉल्स कर देगा। सीखो लिख दे ए बराबर है 2, ठीक हो गया, B बराबर है ठीक हो गया। यह असी करना होया, असी इहदे विच होर कोई चेक कर लेंदे की करिए जी। असी कंटेन्स ओनली contains only, हो गया, असी A कोमा B असी नूं कीता, साढ़े को ट्रू आ गया, क्योंकि सारे सारे कंटेन्स करते हैं, ए भी ते एक भी कंटेन करता, 2 भी कंटेन करते, इस करके ट्रू आ गया। इस करके इन्हां दी ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ये MCQs के हवाले ने बड़ी इंपोर्टेंट चीज़ आ, ठीक है। MCQs साढ़े को जिन्हें थानू 20 MCQs आते हैं तो इन्हां दे विचों ही आने ने, तो इस करके इन्हां नूं अच्छे तरीके दे नाल जिहड़ा वा वो तैयार करो। नैक्सट असी साड़ा होमवर्क की है जी, मैं सैट दे दिते ने, यह सैट्स इन्हां दे तुसी जाओ, इन्हां दे यूनियन करो, इंटरसैक्शन करो, डिस्टिंक्ट करो, सब सैट्स करो, सारा कुछ मालूम करो। इसी तरीके दे इन्हां दरम्यान रिलेशन चेक करो, मुख्तलिफ कीज़ इस्तेमाल कर दो। इसी तरह तुसी डिस्क्रीट मैथमैटिक्स की किताबां देखो, खोलो किताबां खोलो, उहदे विच जाके या FSA की किताब खोलो, उहदे विच जिहड़ा मैथ जिहड़े सैट्स दिते गए ने, सैट्स वाले चैप्टर खोलो, उन्हां विच सैट्स दिते गए, उन्हां दे उन्हां नूं मैथमेटिका के जरिए सॉल्व करो कि असी ये चीज़ा जी वा वो मैथमेटिका के जरिए भी असी जो इन्हों अपनी जिंदगी आसान करने वास्ते मैथमेटिशियन इन्हों का इस्तेमाल कर सकते। इसी तरीके नैक्सट असी एलीमेंट चैक करने वास्ते कि एलीमेंट बिलोंग करते कि नहीं, एलीमेंट नूं कड्ढण वास्ते, इसी तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगारिथम फंक्शन, नैक्सट लैक्चर के 3 पॉइंट जोड़े असी डिस्कस करांगे इंशाअल्लाह।